Hello friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur. I am your IELTS trainer. How are you? I think you are good. I am also fine. In today's video, I am going to talk about this, that is the bar chart and the pie chart, that how we can write this thing and how you can score like 6 or 7 bands by writing a simple form. They have given the question that the charts below show the results of a survey of adult education. Adult ਦੀ education ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ. The first chart shows the reasons why adult decide to study. ਫਸਟ ਚਾਰਟ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ. ਫਿਰ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ, the pie chart shows how people think the cost of adult education should be shared. ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਫॉर ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਕਚਰਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਨ ਬਿਲੋ. ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਠੀਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਸਬਜੈਕਟ. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸੂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ 40% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਰ ਦੈਨ 38% ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਦੈਨ 22% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਜੋਬ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ. ਫਿਰ ਦੈਨ 20% ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਇੰਪਰੂਵ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ. ਫਿਰ ਦੈਨ ਇੰਜੋਏ ਲਰਨਿੰਗ ਔਰ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਵੀ 20% ਆ. ਫਿਰ ਦੈਨ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਜੋਬ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ 9% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ. ਫਿਰ ਦੈਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਊ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਈਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਡ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਫਸਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ 40% ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35% ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਤੇ 25% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੋਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੂਜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਈਏ. ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਫਿਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 2% ਲੋਕਾਂ ਨੇ 40% ਤੋਂ 2% ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਫਿਰ ਦੈਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22% ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ. ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ, ਉਹ 20% ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ. ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 40% ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35% ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 25%, ਮਤਲਬ ਕੁਆਟਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਸਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਫਸਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ. ਬਾਰ ਚਾਰਟ,
रिप्रजेंट्स फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडिंग। बार चार्ट की दसदा है भी जिहड़े स्टडी दे लई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उन्हां बारे दसदा पिया। वाइल पाई चार्ट एक्सप्लेन्स अबाउट पीपल हू मस्ट पे एक्सपेंसिज ऑफ स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब जिहड़े पाई चार्ट आपां नूं की एक्सप्लेन करदा पिया भी किहड़े लोकां नूं किहड़े बंदे नूं इन्हां दे स्टडी एक्सपेंसिज पे करने चाहिए आ, वो बारे दसदा। जस्ट आपां ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दित्ती इत्थे ही। पाई चार्ट आपां नूं दसदा है भी किहने पे करने चाहिए एक्सपेंसिज, ते बार चार्ट आपां नूं दसदा है भी किहड़े फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है लोकी स्टडी क्यों करते हैं कंटिन्यू। फिर हुण बार चार्ट नूं एक्सप्लेन कर लैंदे आपां। अकॉर्डिंग टू बार चार्ट और अकॉर्डिंग टू बार द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल्स, ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल who have decided to study is due to interest that accounts for 40%, ठीक है। हाईएस्ट लोगों ने स्टडी क्यों स्टार्ट की आ, क्योंकि उन्होंने इहदे च इंटरस्ट सीगा। who have decided to study is due to interest that accounts for 40%, 40% वो चीज़ है। and 2% less than this is to add on to their academic degrees, ठीक है। क्यों की आ, कई लोगों ने 2% ये घट मतलब 38% लोगों ने स्टडी चूज़ की है क्योंकि ये उन्होंने एकेडैमिक डिग्रीज दे विच ऐड ऑन करूगा, उन्होंने क्वालिफिकेशन वधूगी। फिर दैन 22% ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्टार्टड स्टडिंग बिकॉज इट इज़ बेनीफिशियल फॉर देयर प्रेजेंट इंप्लॉयमेंट। 22% लोगों ने स्टडी स्टार्ट की आ क्योंकि ये उन्होंने जी हुण अपनी जॉब कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਨਰੋਲ ਇਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ that is 20% and reasons behind this is to get promoted from position along with fun involved in education, ठीक है। मतलब क्यों लोग की करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो प्रमोशन चाहते हैं। स्टूडेंट्स एनरोल इन स्टडीज़ दैट इज़ 20%, वो एक तो प्रमोशन चाहते अपनी जी करंट पोजीशन है वो तो दूजा वो की है फन होंदा तां करके वो ये चीज़ करते पे आ। फिर उस तो बाद परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हू वांट टू स्टार्ट न्यू जॉब एंड सोशलाइजिंग एबिलिटी इज़ 12% एंड 9% रिस्पेक्टिवली। Percentage of students who want to start new job and socializing ability is 12% and 9% respectively। या फिर आप कह दिए the reason for choosing study due to starting new job and socializing is 12% and 9%। फिर उस तो बाद ये पूरा बार चार्ट एक्सप्लेन कर दिता आपने ईजी एंड इफेक्टिव वे दे विच एक्सप्लेन किया आपने की किया। पहला मैं दसिया भी बार चार्ट के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल है जिन्होंने स्टडी डिसाइड की भी असी यही स्टडी चूज़ करांगे वो क्यों आ, क्योंकि उन्होंने इंटरस्ट है वो हैव डिसाइडेड प्रेजेंट परफेक्ट लगाया मैं। फिर उस तो बाद आपने की किया एंड 2% लैस दैन दिस मतलब इनू ही रैकमेंड किया अगे मैं इनू ही रैफर करके दस रही हाँ कि 2% घट क्योंकि अपनी एकेडैमिक क्वालिफिकेशन के ऐड ऑन करना चाहते थे। दैन 22% स्टूडेंट्स ने स्टडी क्यों स्टार्ट की हैव स्टार्टड स्टडिंग नू स्टार्ट किया है दोबारा तो करना क्योंकि उन्होंने लगता कि बेनीफिशियल आ उन्होंने प्रेजेंट इंप्लॉयमेंट के जो करंट जॉब कर रहे हैं। उस तो बाद सिमिलर प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल होया स्टडीज़ दे विच जिहड़ा कि 20% आ। ये रीजन की आ, एक तो उन्होंने प्रमोशन चाहिए आ तो दूजा उन्होंने की आ फन एक्टिविटीज़ जिहड़ा इनवॉल्व आ स्टडीज़ दे विच ओहदे करके वो ये चीज़ कर रहे हैं। फिर जिहड़ी प्रपोर्शन आ स्टूडेंट की जिन्हां ने स्टडी स्टार्ट की आ न्यू जॉब लई ते नाल दी नाल सोशलाइजिंग एबिलिटी करके ओके 12% ते 9% है रिस्पेक्टिवली वाला साइन लगा दिता मैं। फिर उस तो बाद अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट या फिर इन केस ऑफ पाई चार्ट द बिगेस्ट प्रपोर्शन ऑफ स्टडी फाइनेंसेस मस्ट बी पेड बाय स्टूडेंट विद 40%। ओके इट हैज़ बीन रेकमेंडेड या फिर इट हैज़ बीन सुजेस्टेड दैट बिगेस्ट प्रपोर्शन ऑफ स्टडी मस्ट बी पेड बाय स्टूडेंट्स विद 40%। 40% के नाल स्टूडेंट्स नू अपनी स्टडी नू आप ही पे करना चाहिए है। ये उन्होंने क्या होया
also share by the part of managers of job should be high enough with 35%। ठीक है, 35% ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹਾਈ ਇਨਫ ਆ, ਉਹ ਵੀ 35% ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5% ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਐਂਡ a quarter percentage of cost is recommended to be invested by authorities from duty। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹੀ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਮਤਲਬ 25% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ। ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ 40% ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ 35% ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 25% ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ इंटरस्ट इज़ द मेन मोटिव टू स्टडी एज कंपेयर टू अदर कॉजेज। ठीक है, इंटरस्ट सब तो ज़्यादा मेन आ जिहड़ा कि लोग स्टडी करना पसंद करते हैं, ये सब तो ज़्यादा है दूजियां दे नालों। एंड प्रपोर्शन ऑफ दिस इज़ सिमिलर टू एक्सपेंसिस स्टूडेंट्स आउट टू बीयर बाय देयर ओन। जिहड़ा इहदा प्रपोर्शन है क्योंकि आपां नूं पता कि ये सीगा 40%। ठीक है, इस तो बाद जिहड़ा बच्चियां ने अपने आप स्टडी के एक्सपेंस इकट्ठे करने वो की 40% है। तां करके मैं लिखिया भी जिहड़ा इंटरस्ट एक मेन मोटिव आ स्टडी करन दा, उस तो बाद जिहड़ा प्रपोर्शन आ इहदा वो सिमिलर आ जिहड़े कि बच्चियां नूं अपने आप स्टडी के एक्सपेंसिस करने चाहिए। ये सीगा होल टास्क जिहड़ा कि काफ़ी ज़्यादा ईजी वे दे नाल तुहानूं मैं एक्सप्लेन किया कि आपां किवें किवें लिख सकते हैं। सब कुछ आपां ने इनकलूड किया, कुछ भी एक्सक्लूड करने वाला नहीं सी इहदे विच। इस टास्क नूं वधिया बैंड स्कोर्स क्यों मिल सकते हैं ये मैं तुहानूं दसदी हां। पहलां आपां ने की लिखिया प्रॉपर जिहड़ी एक वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सेंटेंस जिहड़े आपां ने बिल्कुल सही लिखिया, सारे ज़्यादा ऑलमोस्ट सारे सेंटेंस सही है, कोई भी एरर्स नहीं है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है या फिर कोई भी जिवें मैं कह दवां वर्ड फॉर्मेशन दे विच कोई एरर नहीं की। फस्ट ऑफ ऑल बार चार्ट सीगा, दैन आपां लिखिया रिप्रजेंट करदा आ, दसदा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच दस्सिया फैक्टर्स रिस्पोंसिबल फॉर स्टडी दे लई किहड़े फैक्टर रिस्पोंसिबल है, आपां ने पैराफ्रेजिंग की प्रॉपरली। फिर उस तो बाद वाइल पाई चार्ट एक्सप्लेन्स, इत्थे भी एक्सप्लेन नहीं लिखा क्योंकि पाई चार्ट अलोन है, तां करके एक्सप्लेन्स लिखा मैं। पीपल हू मस्ट पे एक्सपेंसिज ऑफ स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स की स्टडी के एक्सपेंसिज किन्हां नूं पे करने चाहिए वो दस्सिया आपां ने, पैराफ्रेजिंग प्रॉपरली की। दैन उस तो बाद बार चार्ट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट मतलब सब तो ज़्यादा जिहड़े सीगे हू हैव डिसाइडेड, जिन्हां ने डिसाइड किया। हू लिखिया मैं इत्थे विच नहीं लिखिया क्योंकि विच जिहड़ा प्रोनाउन है वो गलत है। इत्थे पीपल आ, प्यूपल दे नाल हू लगूगा, कोई लोकी आ कि ह्यूमन बीइंग्स है उत्थे हू लगदा, विच नहीं लगदा। फिर दैन इज़ ड्यू टू, इत्थे भी मैं पैराफ्रेजिंग की, रीजन नूं पैराफ्रेज करके मैं ड्यू टू लिख दिता। अकाउंट्स फॉर मतलब परसेंटेज देने लिए मैं अकाउंट्स फॉर यूज़ किया। फिर दैन 2% लैस दैन दिस मतलब ये नालों 2%, ये भी मैं कंपैरिजन यूज़ किया है। दिस मतलब ये चीज़ नूं शो कर रहा, 40% नूं शो कर रहा ओ। फिर एड ऑन टू देयर, एड ऑन मतलब अपनी क्वालिफिकेशन दे विच इनक्रीज करना किसी चीज़ नूं, वो पैराफ्रेजिंग की आपां ने। फिर तो 22% ऑफ स्टूडेंट्स आपां ने लिखा हैव स्टार्टड स्टडिंग। स्टार्टड वर्ब की थर्ड फॉर्म सीगी, जो दो वर्ब्स लगदियां उत्थे या फिर जिहड़ी वर्ब एक ते टेंस के अकॉर्डिंग लगदी है, जिहड़ी दूजी वर्ब हुंदी है उहदे नाल वर्ब की फस्ट फॉर्म ना ING लगदा या फिर टू दे नाल वर्ब की फस्ट फॉर्म लगदी है। मैं टू नहीं लगाना सी, दैन मैं स्टडिंग लगा दिता इत्थे। फिर इट इज़ बेनीफिशियल क्योंकि उत्थे लिखा सीगा हैल्पफुल, मैं लिख दिता बेनीफिशियल, उहदा सिनोनियम यूज़ कर लिया मैं। फॉर देयर प्रेजेंट इंप्लॉयमेंट उत्थे लिखा सी करंट जॉब, मैं लिख दिता प्रेजेंट इंप्लॉयमेंट, मतलब कि एग्जामिनर नूं पता लग जूगा कि हाँ जी इन्हां नूं सिनोनियम्स पता है, इन्हां नूं पैराफ्रेजिंग करनी आउंदी है, इन्हां नूं पता है कि किवें आपां रिप्रजेंट कर सकते किसी भी चीज़ नूं। सिमिलर प्रपोर्शन क्योंकि 20% सीगा, सिमिलर प्रपोर्शन लिखना जरूरी सी अपना, सेम
स्टडी एनरोल मतलब किवें लोगों ने टेक पार्ट किया। हैव स्टार्टड स्टडिंग लिख दिता सी पहला मैं, हुण मैं एनरोल लिख दिता। इज दैट इज 20%। तो ये रीजन सीगे एंड रीजनस बिहाइंड दिस। एंड मतलब मैं तां यूज किया ये रीजन, जे मैं होर कुछ लिखना हुंदा दैन मैं लिखना सी और, या फिर हाउ एवर। बिहाइंड दिस इज टू गैट प्रमोटेड फ्रॉम पोजीशन, एक ये रीजन है। तो दूजा रीजन ए वाला फन इनवॉल्वड इन एजुकेशन। फिर दैन लास्ट लिखिया हू वॉन्ट टू, स्टूडेंट्स लिखिया तां करके वॉन्ट लिखिया, वॉन्ट्स नहीं लिखिया। यही जिहड़ियां निक्कियां निक्कियां गलतियां प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच कोई आपां गलतियां करदे उन्हां नाल बैंड स्कोर्स बहुत डिडक्ट हुंदे आ। तां क्योंकि 6 बैंड दे विच उन्होंने साफ साफ क्या होया, अ परसन हू हैज़ अबिलिटी टू राइट द सिंपल सेंटेंसिस करैक्टली। 7 दे विच की है, सिंपल सेंटेंसिस करैक्टली बट देयर मस्ट बी और देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स इन द कंपलैक्स सेंटेंसिस और कंपाउंड सेंटेंसिस। जे असीं सिंपल नहीं सही तरीके नाल लिख रहे हो, असीं कंपाउंड जिन्ना मर्जी वधिया लिख लिया उहदे नाल सही नहीं होनी वो चीज़ अपनी। सोशलाइजिंग अबिलिटी मतलब मीट करना, तो मैं सोशलाइजिंग अबिलिटी लिख दिता। रिस्पैक्टिवली क्योंकि ये दोनों कट्ठे लिखे से तां करके मैं रिस्पैक्टली वाला साइन लगाया। फिर उस तो बाद पाई चार्ट दे विच बिगेस्ट प्रपोर्शन सब तो ज़्यादा, मैं उन्होंने द मैक्सीमम प्रपोर्शन भी लिख सकती सी बट मैं बिगेस्ट लिखिया क्योंकि मैक्सीमम हाईएस्ट मैं पहला लिखा हुआ सी। ऑफ स्टडी फाइनैंसिस, स्टडी दे एक्सपेंसिस, आप उपर एक्सपेंसिस लिखिया सी, पे एक्सपेंसिस, मैं स्टडी फाइनैंसिस लिख दिता। एक होर वोकैबलरी का वर्ड सिनोनियम यूज़ कर लिया मैं। मस्ट बी पेड, इतने मैं लिखा सी मस्ट, इतने मैं पैसिव यूज़ कर लिया वह मस्ट बी पेड बाय स्टूडेंट्स विद 40%, विद 40%। ऑलसो नाल दी नाल मैं ये नाल होर चीज़ भी, शेयर बाय मैनेजर ऑफ द जॉब, बाय पार्ट ऑफ मैनेजर ऑफ द जॉब शुड बी हाई इनफ 35%, क्योंकि विद मैं लिखिया सीगा उन्होंने थोड़ा चेंज करन दे लई, फिर मैं 35% ब्रैकेट दे विच पा के लिख दिता। तो क्वार्टर का पता आपां नूं भी 25% हुंदा, उत्थे इन्हां नूं एग्जामिनर नूं ये भी पता लग जाऊगा कि इन्हां नूं सब कुछ पता है कि हाँ जी भी किनू की लिखते हैं, किनू की लिखते। 35% नूं मैं लिख सकती सी 1/3, अबव 1/3, बट मैं 35% लिख दिता। प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करना चाहती सी उन्होंने। फिर क्वार्टर परसेंटेज मैं दस दी किन्नी सीगी, वो इन्नी। इज़ रैकमेंडेड टू बी इन्वेस्टेड मतलब ये रैकमेंड शुड बी वाला जिहड़ा हुंदा उत्थे आपां रैकमेंड भी लिख सकते हैं भी उन्होंने ये क्या गया सी कि ये करनी चाहिए। इन्वेस्टेड बाय अथॉरिटीज़ फ्रॉम ड्यूटी मतलब टैक्स जिहड़ा आपां पे करते हैं उहदे विच। ते ओवरऑल मैं दोनों का सेम लिख दिता कि ये विच मोटिव टू स्टडी सीगा, मेन मोटिव टू स्टडी क्यों स्टडी करना चाहते सी ये चीज़ सीगी, ते दैन उहदे नाल ही सेम सिमिलर एक्सपेंसिस भी उन्होंने उन्ने ही बीयर करने चाहिए। ये सीगा होल टास्क जिहड़ा मैं तुहानूं प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि ये आपां नूं वधिया बैंड स्कोर्स क्यों आउणगे, क्योंकि आपां ने कोई गलती नहीं की। आउट टू सीगा, आउट टू मतलब मॉडल सीगे, मॉडल दे विच आपां बीयर लिखिया, बीयर वर्ब की फॉर्म लगाई मैं, ना कि बीयर्स लिखिया, लीड्स टू नहीं लिखिया मैं इहदे च। ओके, जे तुहानूं वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ इनू लाइक जरूर करियो। तो इदां दे ही टास्क तुसीं अपने आप घर लिख के देख सकते हैं कि किवें लिख सकते हैं। कोई भी किसी भी टास्क में लिखण दे बहुत तरीके हो सकते हैं, बट आपां ने की देखना कि कोई भी टास्क लिख रहे हैं उहदे च ग्रामर अपनी सही होनी चाहिए, जिहड़ी अपनी एक स्ट्रक्चर या ऐसे का या फिर राइटिंग टास्क 1 का स्ट्रक्चर वो सही होना चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, फिर अपने बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए जिस आप एक्सप्लेन करते हैं, फिर दैन ओवरऑल इंट्रोडक्शन आपां नूं हमेशा ही पता इंट्रोडक्शन की होंदी, पैराफ्रेजिंग होंदी है। जो भी आपां नूं स्टेटमेंट दित्ती है उन्होंने आपां पैराफ्रेज करके अपने वर्ड्स दे विच लिखना। तो ओवरऑल हुंदा ओवरव्यू मतलब सब तो ज़्यादा हाईलाइट की फीचर्स की सीगियां इहदे विच वो आपां ने दसना हुंदा। फिर जिहड़े बॉडी पैराग्राफ्स है उह आपां एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ कि की चीज़ हैगी सीगी। ये सीगा अपने कोल टास्क। जे तुहानूं वधिया लग्गिया तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ अपने फ्रेंड्स दे नाल दी नाल चैनल सबसक्राइब कर लियो बैल आइकन प्रेस करके, ताकि मैं जो कोई भी नवी वीडियो अपलोड करा तुहानूं नोटिफिकेशन मिल जे। तो जे तुसीं इदां दी वीडियोज़ होर देखने चाहुंदे दैन तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स च कमेंट कर सकते हैं। कोई भी तुहानूं टास्क डिफिकल्ट लगता है मैं तुहानूं उहदे ते वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम गाइज। हैव अ नाइस डे।